Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University, Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for grade 4 English, and we are going to begin the unit number 15 from our students book. The name of this unit is Report and Flowchart, and the content, the story, the report described in this lesson is the Sugar Museum Hiba's report. Okay, as we are going to begin this unit in today's lecture, so this is the lecture number 1 from unit number 15. Okay, in today's lecture, we are going to cover reading of the lesson and meanings of difficult words. It means that I will read this lesson for you, you will read it with me and learn the pronunciation of new words, and you will learn the meanings of difficult words. I will give you those meanings and you will have to write down all those meanings in your classwork notebook. So, open your English classwork notebook and prepare your index. Open index page, write down the serial number, date and topic, where the topic is report and flow chart. Okay, before we begin with the reading, make sure that you have your English students book, your English classwork notebook and your complete stationery available with you. Listen to the teacher attentively and write down the meanings of difficult words in your notebooks. If you don't understand anything, or if you find anything ambiguous in this lecture, just note down the points and send a voice note through WhatsApp mentioning your name, grade and subject and the lecture about which you are sending your note. You will get a response during the school time. Okay, so let's discuss that what are we going to learn in this lesson. This is a report, and report is a document that presents information in an organized format for specific evidence or reader's purpose. Okay, dear students, report ऐसे होती है जैसे किसी ने कोई जगह विजिट की हो या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो, और उस इंफॉर्मेशन को या उस विजिट के बारे में, उस विजिट का पूरा जो डिटेल है उसके बारे में एक प्रॉपर फॉर्मेट में फॉर्मली रिटन किया गया हो. इस तरह के जो रिटन पीस होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्ट. ओके, और फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एक्शंस ऑफ people or things involved in complex system or activity. It may be complex or may not be a complex, but flow chart actually एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती है किसी भी एक्टिविटी की, कि सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और इसको हम एरो के ज़रिए शो कर रहे होते हैं कि सबसे पहले ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म हुई, उसके बाद ये हुई, ये हुई, और इनके लिए डायग्राम्स यूज़ की जाती हैं. इस तरह के जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, जो फ्लो बता रही होती है कि किसी भी प्रोसीजर में इवेंट्स का जो फ्लो है वो क्या था. इस तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट. ओके, in this lesson, Hiba is giving her report of visiting a museum. She visited a sugar museum of sugar factory. She enjoyed looking the photographs in the sugar museum. She tasted the sugar cane syrup. She learned how sugar is made. She reported her visit by giving a flow chart of sugar making. Okay, हिबा जो कि कोई स्टूडेंट है, मे बी शी इज़ फ्रॉम ग्रेड 4, वो गई हैं किसी शुगर फैक्ट्री में जहाँ पे शुगर बनती है, कि किस तरह से शुगर केन जो है वो लाए जाते हैं, फिर उनको स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाला जाता है और फिर उसकी शुगर बनाई जाती है. ये सारा प्रोसेस उन्होंने कहाँ देखा है? किसी शुगर फैक्ट्री के म्यूजियम को उन्होंने विजिट किया है, और उस पूरे विजिट के बारे में हिबा ने ये रिपोर्ट लिखी है और साथ में एक फ्लो चार्ट दिया है. एंड वी आर गोइंग टू लर्न द सेम इन दिस लेसन. ओके, ओपन योर इंग्लिश स्टूडेंट्स बुक, पेज नंबर 86, एंड मार्क डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज where this unit begins. Open your English classwork notebook and prepare your classwork page by writing date and day on the top of the page. Topic is report and flow chart. I will read this lesson and you will read it with me. Just put your finger on the top of this
लेसन वेयर द कंटेंट बिगिंस, और आप अपनी फिंगर को रीडिंग के साथ साथ मूव करेंगे और मेरे साथ साथ इसको रीड करेंगे, और जहाँ पे आपको किसी वर्ड की या किसी बात की समझ नहीं आएगी, जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड लिसन द थिंग्स अगेन एंड अगेन. ओके, on screen you will be able to see the words and their meanings, and you have to write down all those words and meanings in your classwork notebook. So let's begin. On Monday, our class visited a sugar museum which is in the yard of sugar factory. Inside the old boiling house, there was an exhibition of machinery, tools, and photographs. I really enjoyed looking at the photographs that showed the factory and the workers as they were many years ago. Okay, what is described in this paragraph? इसमें बताया हुआ कि हिबा क्या लिख रही हैं कि last on Monday their class visited a sugar museum which is in the yard of sugar factory, यानी sugar factory में वो एक म्यूजियम है, उसमें उन्होंने क्या क्या देखा. Inside the boiling house there was an exhibition. Exhibition means समथिंग डिस्प्लेड, जो हम जहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले किया हुआ होता है किसी प्रोसीजर को समझाने के लिए, या कोई एंशियंट ओल्ड टाइम से रिलेटेड चीज़ों को एग्जिबिट वहाँ पे किया होता है. इस तरह की कोई एग्जीबिशन थी. एग्जीबिशन में क्या था? मशीनरी, टूल्स एंड फोटोग्राफ्स. मशीनरी किस टाइप की मशीनरी होगी? कोई ओल्ड मशीनरी होगी कि पहले जो शुगर मिल्स थी उनमें इस टाइप की मशीनरी यूज़ होती थी, फिर उसके बाद ऐसी मशीनरी आ गई, फिर उसके बाद ऐसी मशीनरी आ गई. इस टाइप की एग्जीबिशन थी. उसके अलावा वहाँ पे टूल्स थे और कुछ फोटोग्राफ्स थी. उन फोटोग्राफ्स में क्या था? उन फोटोग्राफ्स में फैक्ट्री के पुराने वर्कर्स की पिक्चर्स थी, और उन पिक्चर्स को देख के ही उन्हें पता चल रहा था हिबा को कि ये कोई बहुत ओल्ड पिक्चर्स हैं इसी फैक्ट्री की. I learned that sugar was produced in mills. The first mills were powered by horses. Later, wind power was used to drive the machines which squeeze juice from the sugarcane. Okay, what is said in this paragraph? हिबा बता रही हैं कि मुझे ये पता चला कि शुगर जो है वो मिल्स में बनती है, और पहले जो स्टार्टिंग पे पहले जो मिल्स थी, जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो जो मिल्स थी वो पावर्ड बाय हॉर्सेस, मतलब कि हॉर्सेस वहाँ पे यूज़ होते थे उन मशीनरी को चलाने के लिए. जब कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या कोई दूसरी टाइप की गैस पावर वगैरह नहीं थी, तो कैसे मिल्स वर्क करती थी? हॉर्सेस. कोई इस तरह की मशीन होगी कि हॉर्स उसमें मूव करते होंगे, वॉक करते होंगे, और वो मशीन जो है वो चलती होगी. और ये यूज़ किस लिए होती थी? शुगर केन को स्क्वीज करके उसमें से जूस निकालने के लिए. स्क्वीज मीन्स टू प्रेस समथिंग फोर्सफुली, जैसे आप किसी चीज़ को निचोड़ते हो, दैट्स कॉल्ड स्क्वीजिंग. शुगर केन को स्क्वीज करके उसमें से जूस निकाला जाता था. और हॉर्सेस के बाद टेक्नोलॉजी थोड़ा सा काम में आई, और मशीन्स जो थी वो विंड पावर पे चलने लगी, जिस तरह विंड मिल्स होती हैं इस तरह से. ओके, द विंड मिल्स डिसअपियर्ड इन द मिड 19th century when steam powered was discovered. स्टीम पावर आ गई, और डिस्कवर्ड मीन्स कि सामने आ गई या उसको इन्वेंट कर लिया गया. जब स्टीम पावर इन्वेंट की गई तो उसके बाद विंड मिल्स भी डिसअपियर हो गई. अब यहाँ डिसअपियर का मतलब ये नहीं है कि विंड मिल्स अचानक से गायब हो गई. डिसअपियर्ड मीन्स दे वर रिप्लेस्ड, कि उनको हटा दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, रिप्लेस्ड कर दिया गया. किससे? स्टीम पावर वाली मशीनरी से. Steam was produced by enormous boilers. Okay, these boilers were fired by burning bagasse, the fiber left over when the sugar cane was crushed. Later, we tasted the cane syrup. It was fresh and sweet. We also saw some of the byproducts of sugar and learned of the ways in which bagasse can be used. Okay, here a new term is used which is byproducts. आपको पता है grade 4 byproducts किसे कहते हैं? byproducts कहते हैं कि जब कोई प्रोसेस किया जाता है, कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस किसी भी चीज़ को अटेन करने के लिए, तो उसमें जो प्रोडक्ट होती है उसके साथ साथ कोई दूसरी चीज़ भी बन जाए तो उसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, कोई प्रोसेस किया गया किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो चीज़ भी बन गई और उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बन गई. तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, जो इंटेंशनली हमने बनाई नहीं थी लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गई, उसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट.
Okay. Are you writing all the word meanings? That's good. Just pause the video and write down all the meanings and their all the words and their meanings in your classwork notebook. Okay. Finally, we went into the modern factory and saw how sugar was made. It was good day and we learned a lot. Modern means new. Okay. In the end, they went into the modern factory जहाँ पे आजकल जिस शुगर केन में से जहाँ जहाँ पे शुगर प्रोड्यूस की जाती है उस फैक्ट्री में गए। पहले ये पूरा म्यूजियम इन्होंने देखा और इन्होंने देखा कि पहले क्या क्या प्रोसीजर्स होते थे। फिर उसके बाद ये कहाँ चले गए, मॉडर्न फैक्ट्री में जहाँ पे एक्चुअली अब शुगर प्रोड्यूस होती है और इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया। Okay, this was the reading from this lesson. Now come to the page number 87 where on the top of this page a flow chart is given that how sugar was made. Okay, this flow chart shows the complete process कि किस तरह से शुगर केन लाया जाता है, फिर उसके साथ क्या किया जाता है, फिर कैसे कैसे किन स्टेप्स से होने के बाद शुगर प्रोड्यूस होती है। द शुगर केन इज हार्वेस्टेड। डू यू नो व्हाट डज हार्वेस्टेड मीन? हार्वेस्टेड का मतलब है कि फसल से जब उसको काट के लाया जाता है, वो जो कटाई होती है उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। द शुगर केन इज हार्वेस्टेड, देन द केन इज टेकन बाय ट्रक टू द फैक्ट्री, then the cane is cleaned, then the cane is crushed. Crush means to break something into powder. The juice is collected, the impurities are removed, the juice is boiled, the water evaporates and the liquid turns into crystals. The sugar crystals are spin dried. The crystals are sorted by size. The sugar is put into bags. Okay, here it is the complete process. Now let's discuss it. I will elaborate it. शुगर केन सबसे पहले हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद ट्रक्स में वो रख के फैक्ट्री लाया जाता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, उसे क्रश किया जाता है पीसीज में, छोटे छोटे पीसीज में, फिर उसे स्क्वीज किया जाता है और उसमें से जूस कलेक्ट किया जाता है। देन जूस में से इम्प्योरिटीज़ जो भी कोई वो सपोज उसमें कोई पील्स होंगे शुगर केन के अगर मिक्स हुए हुए तो उनको सेपरेट किया जाता है। फिर जूस को बॉयल किया जाता है। द वाटर एवेपरेट्स एंड लिक्विड टर्न्स इनटू क्रिस्टल्स। एवेपरेट्स मीन्स कि वो बॉयलिंग के बाद जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इवेपरेट होता है, वेपर्स की फॉर्म में वो निकल जाता है वहाँ से और रह क्या जाता है पीछे जो उसका एक्चुअल जूस होता है उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं छोटे छोटे। शुगर क्रिस्टल्स आर स्पिन ड्राइड। स्पिन ड्राई मीन रोटेट फॉर ड्राई। उनको क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनमें से वाटर निकला हुआ होता है तो वो थोड़े वेट होंगे, उनको ड्राई किया जाता है। उसके बाद द क्रिस्टल्स आर सॉर्टेड बाय साइज। क्रिस्टल्स को सॉर्टेड बाय साइज मीन्स, सॉर्टेड मीन्स टू डिवाइड इनटू काइंड्स, कि वो कोई जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होंगे उनको साइड पे कर लिया जाता है, जो बिल्कुल छोटे होते हैं उनको साइड पे, और जो बिल्कुल पाउडर सा बन जाता है उसको बिल्कुल ही साइड पे कर लिया जाता है। और ये 3 टाइप्स या डिफरेंट टाइप्स की सॉर्टिंग होती है और उनको डिफरेंट बैग्स में पैक कर लिया जाता है और सेल आउट होने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। ओके, हियर इट इज द फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है, उसके बाद शुगर केन को स्क्वीज़ किया जा रहा है, उसके बाद उस स्क्वीज्ड जो उसके बाद उसे पहले हार्वेस्टिंग के बाद उसको पीसेस में काटा गया है, उसके बाद उसको स्क्वीज़ किया गया है, फिर उसको बॉयलर्स में डाल के बॉयल करके उसको स्टीम बनाया गया है और स्टीम के बाद फिर उसमें से जो क्रिस्टल्स बचे थे उनको ड्राई करके और सॉर्टिंग कर ली गई है। This type of diagram is called a flow chart. Okay, I hope you all enjoyed learning the process of producing the sugar in factory, just like Hiba enjoyed it. Okay, now let's write our homework. Please open your homework diary. Write down date, subject, which is of course English, and your diary is read the whole lesson with proper pronunciation and learn all the word meanings before the next lesson.
This is the end of today's lecture. Good luck, dear students. Allah Hafiz.